So here we were calculated that when far end was hinged, theta a was ml upon 3ei. ओके, सो यहाँ पे फिर से हम लोग जब थीटा ए का वैल्यू 1 रेडियन करेंगे, मीन्स व्हेन वी विल रोटेट दैट पॉइंट विद द एंगल ऑफ 1 रेडियन इंस्टेड ऑफ थीटा ए, देन दैट m will change into stiffness factor and that will be k. So here k will come 3ei by l. Okay, now we are coming to the third case when you have continuous beam. So continuous beam के केस में यहाँ पे देखो that point a point is fixed, okay, b point is hinged, c point is also hinged and d point is fixed. Okay, and here that length is l, here also l, you can consider that length is l, that length is l and that is also l. Okay, and that p is acting at the length of l by 2 and here also it is acting at the length of l by 2. So it is the case of symmetrical loading. You can see here also p at the distance of l by 2, here also p at the distance of l by 2 from point D. Okay, so that is the elastic curve. Okay, that is the elastic curve. So here if at that point we will draw tangent, so that will be the angle theta and both theta will be equal because that is the case of symmetry. Okay, तो इस केस में अब हम क्या करते हैं कि बी सी इस सेक्शन का हम यहाँ पे कंजुगेट बीम ड्रॉ करते हैं. ओके, सिर्फ दिस पार्टिकुलर सेक्शन का. तो जब इस बी सेक्शन को कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सियल फोर्स वी बी डैश. ओके, एंड सी पोर्शन को जब कट करेंगे तो यहाँ पे सीयर फोर्स आएगा, दैट इज कॉल्ड वी सी डैश. ओके, और जो इस पोर्शन को जो कट करेंगे बिकॉज दैट इज कंटिन्यूअस बीम, सो हियर मोमेंट विल नॉट बी जीरो. So here moment will be mm and both moment will be equal because that is the case of symmetry. Okay, so here moment is also m and here moment is also m. So if we will draw the m by ei diagram, so here you can see that will be the m by ei diagram and that is the l. Okay, now for that m by ei diagram we can take moment about that point will be 0. So here I am writing summation mc dash about that point will be 0. Okay, so minus vb dash into l. Okay, vb dash into l and here plus ml upon ei, it will act at the center and because of that moment will be ml upon ei into l into l by 2. Okay, not l, only ml upon ei into l by 2. So okay, so if we will calculate from that equation vb dash, it will come ml upon 2 ei, and you know that in conjugate beam that shear force it will give directly slope angle. So here theta will be ml upon 2 ei because that is the case of conjugate beam. Okay, from that equation what you are getting, m is equal to 2 ei theta upon l, and here also if you will put theta is equal to 1 radian, means that angle if it is 1 radian, then that moment it will substituted by the stiffness factor k. Okay, when you will put theta is equal to 1 radian, so that stiffness factor, that k will come, that will be equal to 2 ei upon l. So that is in case of continuous beam, that is stiffness factor. Okay, now we come to the next important point, that is joint stiffness factor. Okay, joint stiffness factor. So here just see that is the joint. Okay, from that point, that joint, there are 3 different beams are connecting. Okay, and that is called AB beam, AD and AC. Okay, and from that point all 3 support are fixed support. ओके, तो यहाँ पे जो स्टिफनेस फैक्टर है ये पार्टिकुलर जो भी मेरा स्पैन है उसका डिफरेंट है. सो हियर आई एम कंसिडरिंग दैट के ए डी इज 100. ओके, के ए बी इज 4000 एंड के ए सी इज 5000. ओके, तो जो ज्वाइंट का ओवरऑल जो स्टिफनेस फैक्टर होगा that will be the summation of all the stiffness factor, that is the individual stiffness factor of the beam. Okay,
तो टोटल जो KT होगा that will be the summation of K. It will come 4000 plus 5000 plus 1000. It will be 10,000. Okay, that is the total stiffness factor of that joint. Okay, now we comes to the distribution factor. देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का ये मतलब होता है कि अगर, ध्यान से देखना, अगर इस जॉइंट पे हम कुछ मोमेंट m लगाते हैं, ओके, तो जब इस जॉइंट पे हम मोमेंट m लगाएंगे तो वो जो मोमेंट जो ओवरऑल होगा वो इस स्पैन पे, इस स्पैन पे और इस स्पैन पे, तीनों स्पैन पे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओके, तीनों स्पैन पे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तीनों स्पैन पे मोमेंट का, उसका जो समेशन होगा वो उसी मोमेंट के इक्वल होगा जो मोमेंट इस जॉइंट पे एक्ट कर रहा है. बट हियर व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, जो मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस रेशियो में होगा, दैट यू डोंट नो. ओके, इफ यू आर अप्लाइंग हियर मोमेंट m is 2000 Newton meter and I am asking what will be the distribution of that 2000 Newton meter moment for span AD, for span AB and for span AC. मीन्स ये 2000 न्यूटन मीटर का जो मोमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये तीनों स्पैन पे कितना कितना होगा, दैट वी वांट टू नो. सो इन दैट केस व्हाट कम्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है उसके बेसिस पे तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो कि मोमेंट तीनों स्पैन पे कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा. और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो तुम्हारा ये तीनों पार्टिकुलर जो स्पैन है, बीम है, ओके, इसके स्टिफनेस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि ये मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा. ओके, अब देखो जब मोमेंट इस पॉइंट पे लगाएंगे देन व्हाट विल हैपन, that point will rotate by angle theta by the application of moment m. That joint will rotate. Now we come here. तो टोटल m का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंस m इज इक्वल टू समेशन k इंटू थीटा. ओके, समेशन k इंटू थीटा, बिकॉज वी नो जो k था स्टिफनेस फैक्टर, जब थीटा को हम 1 रेडियन से सब्स्टिट्यूट करते थे तब हमको क्या मिलता था, स्टिफनेस फैक्टर. तो m जो है ये टोटल m क्या हो जाएगा, जो पार्टिकुलर MAB, MAC and MAD. Just see here. MAC, MAB and MAD. ओके, तीनों पे जो तुम्हारा मोमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका जो समेशन होगा वो टोटल इस मोमेंट m के बराबर होगा. ओके, अब यहां पे हम आते हैं कि पार्टिकुलर अगर तीनों का स्टिफनेस फैक्टर MAB, MAC और MAD का हम K1, K2 और K3 कंसीडर करते हैं, जो कि वहां पे दिया हुआ है, तो समेशन K इंटू थीटा विल बी K1 थीटा प्लस K2 थीटा प्लस K3 थीटा. तो हियर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ AB इफ यू वांट टू राइट देन इट विल बी MAB बाई टोटल मोमेंट n. ओके, सिमिलरली distribution factor for beam AD, it will be MAD by total moment M that is applying on that point, and similarly DF for AC will be MAC by M. Okay, now what we are doing, we are putting the value of MAB. So here MAB, what you can write in terms of K, it will be K1 into theta, and total M is what, summation K into theta. Okay, theta will cancel out, it will come K1 by summation K. Okay, K1 by summation K means finally what will happen, that distribution factor will come stiffness of that particular span divide by summation of all the stiffness factor at that joint. Okay, जिस joint से तुम्हारा total जो beams का connection है. Okay, तो यहाँ पे तुम्हारा इसका क्या था, स्टिफनेस फैक्टर 1000 था, इसका 4000 था, इसका 5000 था. ठीक है, तीनों जो तुम्हारा यहाँ पे स्पैन है, इसका जो बीम है AD, AB और AC का स्टिफनेस फैक्टर डिफरेंट है, तो समेशन इसका क्या है, 10,000 है. तो पार्टिकुलर अगर हम अलग अलग स्पैन का हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. ओके, देन हियर यू कैन कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर AB, इट विल बी 4000 by 10,000, 0.4, 5000 by 10,000, 0.5
and AD 1000 by 10,000.1. Okay. So here, on the basis of that distribution factor, we can determine that moment 2000 Newton meter, how it will distribute about span AB, AC and AD. Okay, here M is 2000 Newton. तो जो MAB होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को टोटल मोमेंट जो इस जॉइंट पे लग रहा है उससे मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 2000 into 0.4, 800 Newton meter. Similarly, MAC will be that distribution point of 0.5 into 2000, that is 1000 Newton meter, and MAD will be 0.1 into 2000 is equal to 200 Newton meter. So here that diagram where M was what 2000 Newton meter, ये जो इस जॉइंट पे लग रहा था और इसके कारण इस स्पैन और इस स्पैन और नीचे जो स्पैन है बी, ये तीनों पे तुम्हारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ पे 200 न्यूटन मीटर, यहाँ पे 800 न्यूटन मीटर, यहाँ पे 1000 न्यूटन मीटर, एंड ऑल इन सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज, बिकॉज दैट इज पॉजिटिव। और तीनों का जो समेशन हम करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल मूवमेंट था इस जॉइंट पे वो मिल जाएगा। ओके, देन you can see here how distribution factor is very important, and distribution factor, it depends upon the relative stiffness of that beam. Okay, तो रिलेटिव स्टिफनेस जो है बीम के, उसके बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और उसके बेसिस पे हम ये निकाल सकते हैं कि मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं मेंबर रिलेटिव स्टिफनेस फैक्टर। अगर तुम्हारा उस बीम का टोटल जो मोटर्स ऑफ प्लास्टिसिटी ये ई है, तो सारे जो यहाँ पे हम जो निकाले थे स्टिफनेस फैक्टर के इजकल टू 4EI/L, जो फार एंड तुम्हारा हिंज था तो 3EI/L, और जब तुम्हारा कंटिन्यूअस था तो 2EI/L, सारे को अगर हम 4E फैक्टर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं कॉमन फैक्टर से, ओके, डिनोमिनेटर को, देन यू विल गेट रिलेटिव स्टिफनेस फैक्टर। ओके, तो रिलेटिव स्टिफनेस फैक्टर के केस में क्या होगा, जब तुम्हारा फार एंड फिक्स था, ओके, जब फार एंड फिक्स था, देन व्हाट विल हैपन, KR विल बी I/L, बिकॉज K तुम्हारा क्या था 4EI/L था, जब उसको 4E से डिवाइड कर देंगे देन यू विल गेट I/L। जब फार एंड तुम्हारा हिंज था तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इट विल कम 3I/4L, ओके, बिकॉज इट वाज 3EI/L, जब उसको 4E से डिवाइड करोगे तो 3I/4L आएगा। KR तुम्हारा कंटिन्यूअस इन द केस में 3I/2L इट विल कम। ओके, नाउ हम आते हैं कैरी ओवर फैक्टर में। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब तुम डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसको सॉल्व करोगे, तो कैरी ओवर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कैरी ओवर फैक्टर में तो वो कंजुगेट बीम के केस में बताए थे, जब तुम्हारा फार एंड फिक्स रहता है और जब ये एंड हिंज रहता है और इसको जब थीटा ए एंगल से रोटेट करवाते हैं, देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पे जो मोमेंट जनरेट होता है बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन, MAV इज 4EI/θA/L। जब इसी पॉइंट को मोमेंट M से जब हम अप्लाई कर रहे हैं और ये रोटेट कर रहा है थीटा ए एंगल से, तो जो इस पॉइंट का मोमेंट है MAB, इट विल बी 4EI/θA/L। लेकिन जो फार एंड है दैट इज फिक्स्ड MBA, इसका जो मोमेंट होता था वो क्या था 2EI/θA/L था, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ दैट पॉइंट। ओके, तो यहां पे व्हाट वी कैन राइट, MBA इज इक्वल टू MAB/2, दैट वी कैन राइट। ओके, दैट रेशियो यू कैन राइट हियर। तो यहां पे अगर मोमेंट M है और यहां पे M डैश है, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, M डैश विल बी इक्वल टू M/2। फाइन। So here you can see the carryover factor represents the fraction of M that is carried over from the pin to the wall, and here wall is denoted that is fixed support. Wall you can consider fixed support. So here अगर तुम्हारा एक एंड हिंज्ड है और अदर एंड अगर फिक्स सपोर्ट है, तो इसके रेशियो में यहां पे जो मोमेंट आएगा वो यहां पे कितने से डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाफ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर तुम कंसीडर करो यहाँ पे M का वैल्यू अगर 100 न्यूटन मीटर आता है, तो यहाँ पे मोमेंट कितना जाएगा 50, इसका आधा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैरी कर चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड कैरी ओवर फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे इन द केस ऑफ ए बीम विद द फार एंड फिक्स्ड, द कैरी ओवर फैक्टर इज 1/2। ओके, means here moment is M, then here
carry over factor if you will apply 1/2, then moment will be m/2. okay, that is called carry over factor. और इसका ऑरिजिन तुमको समझ में आ गया कि ये कैसे आता है, 4ei थीटा बाई एल 2ei थीटा a बाई एल, इसके कारण आता है। नाउ वी कम्स टू द एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल पे आते हैं। सो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, जिसके जो कॉन्सेप्ट के बारे में हम बताएं, फिर से हम एक बार बोल देते हैं, दैट इज यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। ओके, सबसे पहले तुमको फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट करना है, उसके बाद तुमको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हाउ यू विल कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द स्टिफनेस ऑफ दैट beam, okay, and after that you will calculate the distribution factor of that span. okay, जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में निकल जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, और मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो फॉर्म में। एक तुम्हारा होगा जो डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट होगा, और जो सेकेंड होगा वो होगा कैरी ओवर मोमेंट। तो कैरी ओवर मोमेंट जो होगा ये आएगा तुम्हारा कैरी ओवर फैक्टर के बेसिस पे, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट होगा वो तुम्हारा आएगा स्टिफनेस से। ओके, वो स्टिफनेस के बेसिस पे आएगा जो डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट होगा। तो दो तरह से हम अप्लाई करके मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ वी कम्स टू द एग्जाम्पल। हियर इट इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल। यहाँ पे तुम्हारा ए पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है, सी पॉइंट फिक्स्ड है, और ये हिंज्ड पॉइंट है। ये 15 फीट का स्पैन है, यहाँ 20 फीट है, और इसका जो डब्ल्यू है दैट इज 240 LB पर फीट। ओके, और दोनों का जो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IAB इज गिवन 300 इंच पे पावर 4, एंड IBC फॉर दैट स्पैन इट इज गिवन 600 इंच पे पावर 4। देन KBA you can calculate directly, what is 4ei by L। K जो हम बताए थे स्टिफनेस, इंडिविजुअल निकाल रहे हैं, इस BA का निकालेंगे फिर BC का, तो 4ei by L, तो 4e इंटू 20, और उसी तरह से KBC निकालेंगे, इट विल बी 4e इंटू 600 by 20, सो इट विल बी 4e इंटू 30 इंच टू द पावर 4 पर फीट। ओके, फाइन। नाउ वी कम हियर, distribution factor, what I told you, it is K upon summation of K. So if you will calculate distribution factor of BA, so 4e into 20 upon summation of all distribution factor, summation of all stiffness at that point, it will be 4e into 20 plus 4e into 30, so it will come 0.4. Similarly, DF for BC, it will come 0.6. Now we comes to a DF of AB. It is very interesting. Just see here. अगर तुम AB का यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं, ओके, तो इस केस में क्या होगा तुम्हारा, फर्स्ट ऑफ ऑल KAB, ओके, KAB जो यहाँ का स्टिफनेस है उसको हम डिवाइड बाई तुम्हारा ओवरऑल स्टिफनेस एट दैट पॉइंट। तो ओवरऑल स्टिफनेस का जब हम इस पॉइंट का बात करेंगे, इस पॉइंट पे ओवरऑल स्टिफनेस क्या होगा, एक तो होगा KAB, ओके, और एक होगा यहां का स्टिफनेस जो यहाँ पे वॉल से कनेक्टेड है। तो जो वॉल से कनेक्टेड है उस केस में हम इसका जो स्टिफनेस है क्या कंसीडर करते हैं, दैट इज इंफिनिटी। ओके, व्हाई इट इज इंफिनिटी, क्योंकि ये जो फिक्स सपोर्ट है, ये जो वॉल से कनेक्टेड है, ये इसको रोटेट नहीं होने देगा, और रोटेट जब नहीं होने देगा तो इसके कारण इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या होगा, थीटा 0 हो जाएगा। ओके, ये इसको रोटेट नहीं होने देगा। तो बिकॉज ऑफ दैट स्टिफनेस ऑफ दैट वॉल फिक्स सपोर्ट, दैट इज वी आर कंसिडरिंग दैट इज द इंफिनिटी। ओके, और जब ये इंफिनिटी होगा तो इन दैट केस यू कैन सी हियर DFAB 4e20 अपॉन इंफिनिटी प्लस 4e20, तो बॉटम में क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। तो जिसके कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है AB का, दैट विल बी 0। सिमिलरली अगर यहाँ पे तुम DFCB भी देखते हो, तो C तुम्हारा क्या है, फिक्स सपोर्ट है, ये एज ए वॉल यहाँ पे कंसीडर कर रहा है। तो अगर C पॉइंट का हम कंसीडर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो यहाँ पे CB का तो हमको KCB पता है, ठीक है, KCB तो तुम निकाल सकते हो, डेट KBC जो भी है, बट जो इधर का जो पॉइंट है उसका स्टिफनेस दैट इज इंफिनिटी।
Okay, that is infinity. So in that case, what will happen? Distribution factor at that point DFCB, what will happen? It will be the KCB. Okay, just see here, it will be the KCB upon KCB plus infinity. Here distribution factor, here stiffness factor is what? Infinity. So bottom it will come infinity. तो जो यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा इट विल ऑल्सो इन्फिनिटी 0. Okay, here also it will come 0. So in that case DFAB and DFCB, that will be 0. And here also I am right, I have written also, at the walls joint A and C, the distribution factor depends on the member stiffness factor and the stiffness factor of the wall. Since in theory it would take an infinity size moment to rotate the wall 1 radian. मीन्स जो ये फिक्स सपोर्ट है, वॉल है, ये रोटेट ही नहीं कर रहा, इसके लिए तुमको इनफाइनाइट मोमेंट लगाना पड़ेगा. ओके, इसको रोटेशन के लिए, मतलब लॉजिकली ये रोटेट ही नहीं कर रहा है, मतलब जितना भी मोमेंट यहाँ पे तुम लगाओ इट विल नॉट रोटेट. ओके, तो यही यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है. So the wall stiffness factor is infinity. Okay. So Kr will come I by L, that is relative stiffness factor. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना, इट इज़ वेरी सिंपल. सबसे पहले हम FEM निकाल लेंगे BC का, that is minus WL square by 12. W distributed load है 240 into 20 square by 12, it will come minus 8000 LB feet. Okay. उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, FEM निकालेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट CB का, इट विल कम WL स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 240 इंटू 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 12. सो इट विल कम 8000 LB फीट. एंड FEM AB इज इक्वल टू FEM BA इज इक्वल टू 0. ओके, क्योंकि जो ये स्पैन है इस पर कोई भी लोड नहीं है, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, AB और BA दैट विल बी 0. अब यहाँ पे आते हैं, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले जो हम यहाँ पे ये चार्ट बनाएंगे, और ये चार्ट में सबसे पहले ध्यान देना, जो पहला जो मेरा रो होगा इस रो में ज्वाइंट होगा. ज्वाइंट मेरा क्या है, A B C. हाउ मेनी ज्वाइंट्स आर देयर, टोटल 3 ज्वाइंट्स आर देयर. ओके, सो इन फर्स्ट रो इट विल बी टोटल ज्वाइंट्स विल बी देयर A B and C. In second row you will come, after joint you have to write member. How many members are there, A B. ए ज्वाइंट पे जो मेंबर है, ए ज्वाइंट से कौन सा मेंबर जा रहा है, ए बी. बी ज्वाइंट से हाउ मेनी मेंबर्स, जस्ट बी ज्वाइंट से कितना मेंबर है, बी ए और बी सी. सो हियर एट बी ज्वाइंट हाउ मेनी मेंबर्स यू विल राइट, बी ए एंड बी सी. एट सी ज्वाइंट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, जस्ट सी हियर एट सी ज्वाइंट सी बी ओनली 1 मेंबर्स आर देयर, सो यू विल राइट सी. नाउ द थर्ड होगा, दैट इज row you have to make, that is for distribution factor. So distribution factor you have calculated already, just see here, DF AB and DF CB it will be 0. Okay, so DF जो AB का distribution factor है 0, और जो CB का भी जो distribution factor है it is 0. Okay, अब B joint पे आते हैं, BA और BC का. BA BC का distribution factor यहाँ पे calculate किए, it is 0.4 and BC it is 0.6. Okay, 0.4 and 0.6. Okay, now next column is for fixed end moment. Okay, fixed end moment हम यहाँ पे क्या निकाले हैं, minus 8000 LB feet and 8000 LB feet BC and CB. तो जो मेरा मेंबर है उसके सामने हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, fixed end moment. But here just very careful, you have to write it with the sign. Here it is minus 8000, then you have to write it minus 8000 and प्लस 8000. ओके, अब सेम रो में जिसमें तुम फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखते हो, सेम रो में यू हैव टू राइट डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट एंड कैरी ओवर. ओके, तो यहां पे जो माइनस 8000 जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेगा इस ज्वाइंट पे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.4 एंड जो 0.6 है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसी रेशियो में ये BA मेंबर और BC मेंबर में ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ओके, और जब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो
साइन विल बी अपोजिट. माइनस 8000 है तो 8000 into 0.6 it will be 4800, it will be positive, and 8000 into 0.4 it is also 3200, it is also positive, and here it is 8000. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है 0, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा. लेकिन ये जो प्लस 3200 है ये इस पॉइंट से ये जो मेंबर है ये इस ज्वाइंट पे कैरी करेगा मोमेंट. जो कैरी ओवर मोमेंट है कितना करेगा, इसका हाफ, जो हम ऑलरेडी तुमको यहाँ पे कैरी ओवर मोमेंट के बारे में बताए. एम डैश विल बी m/2, मतलब यहाँ का जो फार एंड क्या है फिक्स्ड है, तो यहाँ का जो मोमेंट जो तुम्हारा होगा वो यहाँ पे कितने से कैरी ओवर करेगा, हाफ से करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंट m था यहाँ पे कितने से कैरी ओवर किया था, m/2 से. दैट्स वाई इट विल कैरी द मोमेंट बाय हाफ. तो 3200 जो तुम्हारा यहाँ पे हम 3200 निकाले इसका हाफ से यहाँ पे ये कैरी कर जाएगा ज्वाइंट ए पे मोमेंट. दैट विल बी 1600. ओके. सिमिलरली 4800 है, यहाँ पे फार एंड क्या है तुम्हारा फिक्स्ड है. ओके. एंड दैट इज हिंज्ड, तो यहाँ पे कैरी कितने से करेगा, 4800 का हाफ से यहाँ पे कैरी कर जाएगा. सो दैट इज 2400 एंड 1600 इट इज कैरी ओवर मोमेंट. ये कैरी किया है. और ये जो 3200 और 4800 है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट. इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, स्टिफनेस ऑफ द बीम. ओके. तो यहाँ पे तुम्हारा कैरी कर गया. नाउ जो समेशन टोटल मोमेंट है हम सारे जो पार्टिकुलर जो मेंबर्स है उसके लिए हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं. तो ए बी के लिए 0 प्लस 1600 इट विल 1600. बी ए के लिए क्या होगा 3200 ओनली, इट विल बी 3200. BC के लिए क्या हो जाएगा माइनस 8000 प्लस 4800 मीन्स इट विल बी माइनस 3200. CB के लिए मेंबर के लिए क्या हो जाएगा 8000 प्लस 2400 जो 4800 का यहाँ पे कैरी ओवर मोमेंट आया था. सो इट विल बी 10400. सो फाइनल मोमेंट MAB is 1600, MBA is 3200 and MBC is minus 3200 and MCB is 10400. And here also you can cross check it, it is equal and opposite. It will be, if it is plus 3200 then here it will be minus 3200, equal and opposite. At that point moment is 0. If you will add that moment that will be 0. Okay, so that is the very simple problem actually. After that in next video I will go to the some complex problem and one frame problem also I will solve by moment distribution method. Okay, thank you.